Earlier, we were doing sessions on laws related to intellectual property. Today's session is based on laws related to competition. Uh, the companies which are into production and manufacturing units, and all the companies which are operative in the market, there are certain laws which are there, which are binding on the companies based on competition. यानी कि वो laws जो बनाए गए हैं वो उन कंपनीज के लिए बनाए गए हैं जो मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं और इस कोऑपरेटिव मार्केट में ऑपरेट करने के लिए और कस्टमर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कुछ लॉज और रूल्स जो कि बेसिकली लॉज हैं जो कि लीगली बाइंडिंग है वो बनाए गए हैं। वो लॉज क्या हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंपटीशन? द कंपनीज who are operating in the market, companies who are producing products of the same prototype and same variant. Probably any XYZ company is producing chocolates and some ABC companies also producing chocolates and similar kind of companies which are producing chocolates, they are competitors for each other. Now in the due course of competition in the market, it is observed previously that many companies opt for unfair practices or unfair trade practices to promote their business. So these unfair trade practices which are unethical, so those unethical activities are considered illegal, and hence government of India, right on national level and across the globe, because we are working in a globalized economy, there are international laws as well which are binding on the producers, manufacturers, companies, importers, exporters, and these people and these companies and the management of the companies are supposed to adhere and stay aligned to the laws. These practices or legal practices are enforced by government, and they are being practiced, or the government asks the companies to practice this and execute this to safeguard the interest of the buyers, customers, consumers. तो कंपटीशन लॉ जो है वो फेयर कंपटीशन, आप कंपटीशन कर सकते हो, इट इज ऑल अलाउड टू compete इन द मार्केट, बट फेयर कंपटीशन, आपको फेयर कंपटीशन करना है। Many are practices which are illegal, unethical, and later on, like labeled illegal, the companies are not supposed to opt for those practices. ये कंज्यूमर वेलफेयर के लिए है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। Prohibition of anti-competitive agreements. Those practices such as cartels, such as price fixing, such as big rigging, market allocation are prohibited. What do you mean by this? Those practices which do not allow the competitors to operate freely in the market, this will be somehow, this is somehow illegalized and will be prevented by the government. जिसमें एक एग्जाम्पल क्या है, क्या क्या रिस्ट्रिक्ट करना है? Cartel. What is cartel? Cartel is basically an agreement which is basically, you let's say कि different companies or producers which are producing same kind of product will agree on something to reduce the competition in the market, and they will try to create a monopoly and somehow will try to exploit the customer. As for example, दो तीन major players in the market
दे कोलैबोरेट ऑल टुगेदर कि हम इसी स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे. We will not be producing products of high standard and quality. And the prices of the product should be at par. अब आपकी एयरलाइंस कंपनी है, and there are 2-3 airlines company which are operating in India, let's say in the domestic market, and the owners of the company all together aligns and agrees on an idea that particular festival is approaching. So the minimum fare for some 2,000 kilometer or 1,000 kilometer of this of journey should not be less than 10,000 at any cost. ये एक कार्टेल हो सकता है. कार्टेल को यूज करके वो प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं. यानी कि हम ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी कैलकुलेशन है कि हमें ज्यादा पैसा कमाना है, हम ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे. लेट्स से देयर आर 10,000 बायर्स इन द मार्केट, वी विल बी प्रोड्यूसिंग समहाउ 8,000 प्रोडक्ट्स ओनली टू लेट द प्राइस हाइक. हम प्राइस को हाइक कर देंगे. ये है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. मार्केट सेगमेंट कर लेंगे कि आप उस मार्केट में ऑपरेट करो, मैं इस मार्केट में ऑपरेट करता हूं. वो मार्केट डिफाइन कर लेंगे. मार्केट डिफाइन करने से क्या होगा कि लेट से 2 कंपनीज 3 कंपनीज ऑल ओवर इंडिया ऑपरेट कर रही हैं या 4 कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं. बट फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस they segregate their market, that I will be operating in north of India, you shall operate in south of India, and 2 others will be operating in east and west of India. So this process will let the company create their monopoly in the given zone and lobby, and this will be not very much advantageous and good for the buyers or customers. प्राइस फिक्सिंग नहीं करना है, मार्केट आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, प्राइस कंट्रोल नहीं करना है. प्राइस कंट्रोल कहने का मतलब है प्राइस फिक्स नहीं करना है. प्रोडक्शन लिमिट किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं करना है. So these are different problems which are usually faced by the government to control unfair trade practices, and ultimately in case if this comes up and floats in the market, it will be not a good idea for the customers. This is prohibition of anti-competitive agreement. What is bid rigging? Bid rigging is also an unfair trade practice. It is an anti-competitive practice. Companies are barring each other to compete in the market because competition exists will always lead to certain factors that to compete the companies will keep on researching and developing their product to achieve a higher quality of product to increase their stake in the market side. And the companies in a healthy competitive market will always be concerned about reducing the price, so they're able to dispose of, sell out more and more products in the market. But again, bid rigging is also an anti-competitive practice, an unfair trade practice prohibited by government. And herein, in this case of bid rigging, 2 or 3 different uh, producers or manufacturers or suppliers will come together to manipulate the market, especially in the cases of auctions, tenders, etc., etc. Let's say
there is some auction, there is some tender which is supposed to be like which is proposed, some tender is proposed, or some auction is supposed to take. There are three different companies which are filing the tender or wish to take the auction, participate in the auction. Ultimately, let's say the auction starts with somehow 100 crores. So these two, three players will assemble together, connect together to not let the price of tender in auction, as an example, go beyond 1 lakh, 1 crore, 150 crores. तो 100 करोड़ का था, तीनों ने आपस में बात कर ली कि हम 150 करोड़ से ऊपर ही नहीं होने देंगे। यानी कि आप जब आओगे ऑक्शन में आप बोलोगे 100 करोड़ 20 लाख, 100 करोड़ 30 लाख, और इस तरह कर 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 फाइनल जो है हम 150 करोड़ का कोट करेंगे, जो भी आएगा हम इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ये अनफेयर है। उसी तरह टेंडर में दो तीन मेजर प्लेयर्स विल बी फाइलिंग द टेंडर। टेंडर का मिनिमम कोटेशन 80 लाख का है, वो 80 85 90 लाख के बीच में फिलअप कर देंगे। जिसे टेंडर आ गया वो प्रोसेस करेगा आगे अपफ्रंट, लेकिन फाइनली प्रॉफिट उन तीन प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। Abuse of dominant position. What is the abuse of dominant position? A company which is the major stakeholder in the market. Might be an example कोई भी, आप जियो का मार्केट साइज कैप्चर कर रहा है, वो प्राइस हाइक कर देगा, उसका नेटवर्क सबसे अच्छा है, उसकी कनेक्टिविटी पैन इंडिया है, वो प्राइस हाइक कर रखेगा। आइडिया ऑब्सोलीट हो जाएगी, आप हो गई, वोडाफोन आपकी ऑब्सोलीट हो गई, एयरटेल का मार्केट साइज कम हो गया। अलग अलग जो गवर्नमेंट के जो आपके BSNL MTNL, इनका प्रेजेंस कुछ रहा नहीं, नेटवर्क रहा नहीं। टाटा डोकोमो ऑलरेडी डिसोल्यूशन हो चुका, डोकोमो, एस्टेल, एयरसेल, बहुत सारे। तो अब दो तीन बच जाएंगे भाई, ठीक है, रिलायंस का जियो आ जाएगा, एक एयरटेल आ जाएगा। तो रिलायंस के हाथ में पूरा स्टेक मार्केट का है, मेजर प्लेयर है, अच्छा नेटवर्क है। तो ये जो आपकी डोमिनेंसी है मार्केट में, इस डोमिनेंसी के बेसिस पे आप मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो? आप प्राइसेस इंक्रीज कर रखोगे, आप इस तरह एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स जो आपके हैं, चाहे वो डेटा कनेक्शन है, नेटवर्क रिचार्ज है, उसकी आप मैक्सिमम प्राइसेस मार्केट में रखोगे कि आपकी क्वालिटी अच्छी है और इसलिए मेजर स्टेक आपके पास है। तो इस तरह से डोमिनेंट पोजीशन का जो है कंपनीज यूज कर सकती हैं कस्टमर को एक्सप्लॉइट करने। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, मर्जर कंट्रोल। मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है? two giants two giant players of the same industry, yeah, two big companies all together, or any two company, whether big or small, they merge together to operate and sustain their business. Because two companies merge together all together, so the market size of company A and the market size of company B collectively will be maximum. Let's say A company has a market size of 40% and B company has also a market size of 30%. So 30 plus 40 is 70%. Now the moment they merge together, 70% of the market is captured by both the companies. Merge. This also gives you an immense amount of power to hike the price, to limit the production, to exploit the customer. Acquisition. Big companies engulf and somehow they occupy a smaller companies. It is acquisition. A एक बहुत बड़ी कंपनी है और B एक छोटी कंपनी है। A बड़ी कंपनी ने B छोटी कंपनी को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया, B का जो है डिसोल्यूशन हो गया, B का
की आइडेंटिटी खत्म हो गई, वो ए में मर्ज हो गई। तो बी का जो मार्केट साइज था वो ए में आ गया, मार्केट साइज बड़ा हो गया, उसके हाथ में पावर आ गई। डिफरेंट डिफरेंट नेशनल जुरिस्डिक्शन में क्या लॉज हैं। जैसे इंडिया में कंपटीशन एक्ट 2002 है, गवर्नमेंट इसको गवर्न करती है। इसमें क्या होता है, ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो है उसको मॉनिटर करती है। जो मैंने बताया, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को मॉनिटर करती है, और अनफेयर मर्जर एक्विजिशन को मॉनिटर करती है। यूनाइटेड स्टेट्स में शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट 1890 है, एंड द फेडरल ट्रेड कमीशन एफटीसी है, ये कंपटीशन को रेगुलेट करता है। फॉर इंडिया यू हैव कंपटीशन एक्ट 2002, फॉर यूएस यू हैव शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट 1890, फॉर यूरोपियन यूनियन ईयू, यूरोपियन यूनियन यू हैव आर्टिकल 101, आर्टिकल 102, ट्रीटी ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन, टेफू के नाम से, जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को प्रोहिबिट करता है इंटरनेशनल। कनाडा में कंपटीशन एक्ट एंड कंपटीशन ब्यूरो रेगुलेट करता है कंपटीशन लॉ। अब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें, कंपनी ए इज प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट, कंपनी बी इज प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट, बी इज प्रोड्यूसिंग जैम, ए इज प्रोड्यूसिंग bread. I wish to buy jam, and they're the major is containing the like they're containing the major stake in the market. I wish to buy out jam. I reach out to a shop. Now I am buying a jam, but with that jam I am also supposed to buy bread. How come? Because they have collectively framed the product. Jam costs rupees 50, bread costs rupees 50. They will be selling you the entire package in rupees 90. Although it seems to you are in profit, because individually buying out the product will let you pay 50 is to 50. But in this case, you are not willing to pay, but you are forced to buy out the product because you don't have enough options in the market. ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट में ये आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। I do buy out, let's say, raw materials. Let's say a leather raw material. I am one of the leading company in India producing footwears, and the, this leather raw materials. The major leather is buy out by me because I'm the major stakeholder in the market. So most of the large size vendors do sell out their leathers to me now because I'm the major buyer of 90% or 85% of the leather. I can force them and I can restrict them because of the authority and power I have, that they should not buy out the sell out the leathers to other competitors who are प्रोड्यूसिंग फूड वेयर। मैं 85% स्टेक रखता हूँ मार्केट में और शूज बनाता हूँ। मुझे लेदर खरीदना होता है, मेरे बहुत सारे वेंडर है जहाँ से मुझे लेदर मिलता है, मैक्सिमम लेदर मैं उनका खरीदता हूँ। तो मैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ अपने पावर से कि आप दूसरों को नहीं सेल करोगे, मतलब मैं नहीं चाहता कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर आए। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, फिक्सिंग प्राइसेस फॉर रीसेल ऑफ प्रोडक्ट। या देवेंद्र, yeah, elevator company do have a certain kind of monopoly, as you have uh, mentioned in the text, Cohn, Otis, Johnson, etc., etc.
What is resale price maintenance? RPM, resale price maintenance. Resale price maintenance is basically a practice wherein a supplier or manufacturer sets a minimum price at which a retailer or distributor must sell the product. एक प्राइस फिक्स कर दिया कि इससे कम नहीं बेचना है। जैसे कि मैं मार्केट में गया, मुझे एप्पल लेनी, वहां पे मुझे 10 अलग अलग वेंडर दिखे, शॉप दिखी, लोग रोड पे लेके एप्पल बेच रहे हैं। अब मैं जहां जा रहा हूँ वो कह रहे हैं 300 रुपए किलो। तो अब मैं मजबूर हूं कि मुझे 300 रुपए किलो ही खरीदना है। ये अनफेयर है। उसी तरह मैक्रो लेवल पे प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स डू ऑल्सो प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ अनफेयर एक्टिविटीज। लेट्स से कि मैं कॉपर का सप्लायर हूं और मेरे तरह दो तीन बड़े बड़े और कॉपर के सप्लायर हैं, और मोस्ट ऑफ द लो कंपनीज जिन्हें कॉपर चाहिए होता है मैन्युफैक्चरिंग में, वो हम ही से लेते हैं। हम दो तीन लोग जो प्लेयर्स हैं, जो कॉपर की मैन्युफैक्चरर हैं, वो अग्री कर सकते हैं इस बात पे कि भाई हम कॉपर को इस प्राइस पे ही सेल करेंगे, इससे कम पे नहीं सकते। तो अब नाउ दोज बायर्स who are into manufacturing, they have to manufacture. They cannot stop their production. So they herein become weak, and somehow now they are forced to buy out the copper raw materials at the given cost which they have agreed on. अब यहां से खरीदो या वहां से खरीदो, उसका एक प्राइस मैंने सेट कर दिया। और मिनिमम प्राइस सेट करने का मतलब ये होता है कि सपोज मार्केट में 8,000 रुपए पे कुछ मिल रहा था, हमने उसको कर दिया कि भाई आप 7,000 रुपए से कम में नहीं मिलेगा, आप इससे ऊपर ही कर। आपने ओवरऑल उस प्राइस को फ्लोट करा देते हो ऊपर की तरफ और फिक्स कर देते हो। जैसे कि आप किसी लोकेशन में रहते हो और वहां पे कुछ शॉप्स हैं, जनरल स्टोर। अब आप ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पर लेट्स से 10 किलोमीटर तक कोई भी शॉप नहीं है, दो ही शॉप है वहां पर। अब जिसे भी लेना होता है सोसाइटी से बाहर आके उन दो शॉप से लेता है। अब वो 70 kg का चावल जो है वो 100 रुपए की जो बेचता है, आपको खरीदना है खरीदना। आप हाईवे पे जाते होते हो, आपको इमिडिएटली चाय पीना होता है, मैगी खानी होती है, या कोई सामान आपने देखा होगा लेना होता है। आप देखते हो जो 20 रुपए की मैगी यहाँ पे 150 में मिलती है। उसी तरह आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में रेलवे स्टेशन, वहाँ पे रात में बहुत सारे सामान अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको कुछ खरीदना होता है। आप अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट भी है तो आप यूजुअल प्राइस से ज्यादा पे। नेक्स्ट इज इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म एंड पेनल्टीज। अब ये चीज जो है, जो प्रॉब्लम हो रही है, जो अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है, इसको हम रोकेंगे कैसे? इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग पावर। द अथॉरिटीज विच आर देयर इन इंडिया, दे हैव ऑल द अथॉरिटी इन द पावर and the position to investigate right into the anti-competitive practice. It is not very easy. It is not very easy to identify. It takes time, and you need to. The team need to invest time there. Need to have a research, and then only you can identify the problem. It is not very easy to guess. It is not a guesswork. It is not very easy to decode that anti-competitive practices are going on in the market. Penalties, manufacturing plants or companies who will engage and involve in anti-competitive practices, they will be like asked to pay penalty, fine. The company might be shut down by the order of the court.
What is leniency program? Leniency program is basically an initiative in which the companies are provided with facilities or somehow options wherein those companies who will leak out the idea which some company has opted for in terms of anti-competitive practice, and in case if some company comes up and they reveal that some company is involved into anti-competitive practice, so they will be rewarded. तो आपका एक लीनियंसी प्रोग्राम आपने लॉन्च कर रखा है, तो ये पॉलिसी क्या है? क्या आपको पता चलता है कि कोई कंपनी ऐसा कर रही है, आप इस बात को और इस चीज को, इस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करते हैं, या आप खुद इन्वॉल्व हैं? अब आप लेकिन उस कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं रहना चाहते जिसके साथ आप मिलकर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहे थे, और आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, तो आपको इम्यूनिटी मिलती है, आपको इम्यूनिटी मिलती है, और आपको पेनल्टी कम लगती, फाइन कम लगता है। या तो गवर्नमेंट विल लेवाई lower amount of penalty and fine on you. They will provide you, they will let you gain immunity. It is exclusive for the first person, the first company which leaks out that something illegal is going based on anti competitive practice. Consumer protection concepts in competition. कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा कनेक्टेड है कंपटीशन लॉ से। अगर कंपटीशन का जो लॉ है अगर उसको वीक कर दिया जाएगा तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हर नूक एंड कॉर्नर पर हो पाए मॉडेबल। ये जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, मतलब कि जो अनएथिकल वे ऑफ कंपटीशन है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को आप ऐसे समझ सकते हो कि अनएथिकल वे ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन मना नहीं है, कंपटीशन आप कर सकते हो, जितना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन अनएथिकल वे ऑफ कंपटीशन इज बार्ड बाय द गवर्नमेंट, इलीगल वे ऑफ कंपीटिंग इज बार्ड बाय द गवर्नमेंट। और अभी जो हम बात कर रहे थे वो इलीगल और अनएथिकल वे ऑफ कंपटीशन, क्योंकि कस्टमर को बहुत हार्म कर। नेक्स्ट।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो कंपटीशन लॉ से लिंक्ड है। अब कंज्यूमर वेलफेयर हम देखते हैं। कंज्यूमर वेलफेयर क्या है? कंज्यूमर कौन है? जो सामान, जो किसी प्रोडक्ट को यूज करता है, प्रोडक्ट को यूटिलाइज करता है, द पर्सन हु यूटिलाइजेस द प्रोडक्ट इज अ कंज्यूमर। जैसे you buy the mobile phone and you are using that mobile phone, you buy out a food stuff, maybe any paneer roll, anything now, or maybe anything. So you are consuming that product. You buy out a t-shirt, you are wearing the t-shirt. You buy out a car, you are driving that car. You are the consumer. Someone who consumes the product is a consumer. So consumer का welfare. Consumer welfare refers to the benefits consumer derive from competition. Consumer welfare refers to the benefits consumer derive from competition, including lower prices, better quality products, and increased innovation. This means to say, this means to say that more the competition is in the market, there is a higher possibility that you will be receiving product of a higher quality on a lower price. Because if the competition is higher, companies will come up to compete to provide the customer with a better quality of the product. So the customers buy their product instead of any other player's product. And good quality with minimum prices will be offered to customer by the companies to increase their market size. मैं एक बिजनेस करना चाह रहा हूँ तो मैं अच्छा कोशिश करूंगा ना कि मैं सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेलेबल हो पाएगा अगर अच्छा होगा, और प्राइसेस बहुत कॉम्पिटिटिव और लोअर रखूं कि सारे कस्टमर्स मेरे पास आए। और अगर मैं अग्रीमेंट कर लेता हूँ आसपास कंपनीज के साथ कि भाई साहब खराब सामान बेचना है और पैसे भी बढ़ा कर रखते हैं, तो यही तो अनफेयर प्रैक्टिस। तो फेयर competitive practice will always be for the welfare of the company. What are anti-competitive practices? जैसा मैंने बताया था, आपको याद रखना है, प्राइस फिक्सिंग, रिगिंग, बिड रिगिंग, बीआईडी बिड, मार्केट एलोकेशन, ये सारे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं। These practices will not let the sellers or producers to produce a good quality product. They will not let the seller to sell the product on a lower price, and they will also not let the producer or seller to keep on doing research to develop the product. They will not be innovative. Market power. The companies which have the largest market size, they have the power to influence the market in terms of quality and price. How customers are affected? Customers are affected because they're asked to pay higher prices with lower quality. Competition advocacy. What is competition advocacy? Competition advocacy बेसिकली एक वो प्रोसेस है जिसमें आप कंपटीशन को प्रमोट करते हो, कि आप हेल्दी कंपटीशन करते हो, और कंपनीज को एडुकेट करते हो कि वो कंपटीशन भी करें, और जो कंज्यूमर है, फाइनली कंज्यूमर्स आर द पीपल हु आर पेइंग, है ना, वो उनके लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो के लिए बेटर हो। कंपटीशन एडवोकेसी से कॉम्पिटिटिव मार्केट बनता है विथ एथिकल प्रैक्टिसेस, और ये अनएथिकल प्रैक्टिस को रिड्यूस करता है। व्हाट इज कंज्यूमर चॉइस?
कंज्यूमर के पास मल्टीपल ऑप्शंस होना. You get into a shop and you have a lot of options to buy a biscuit. You get into a shop, you have a lot of options to buy shirts. तो मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, तो वो कस्टमर उसमें से पिक कर सकता है, चूज कर सकता है. और ये अच्छा कंपटीशन है. इससे कस्टमर का वेलफेयर होता है. तो क्या, ये कंपटीशन एक्ट के रिगार्डिंग मैंने बताया था. ये कंपटीशन एक्ट, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने लॉ को इनैक्ट किया है. और ये इस पर्पज से किया गया है कि आप एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस एज अ कंपनी ऑप्ट नहीं करेंगे. ये जो लॉ है वो रेस्ट्रिक्ट करेगा कंपनीज को कार्टेल करने में, प्राइस फिक्सेशन करने में, बिड रिगिंग करने में, और अदर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को रोकने में. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, दिस इज द बॉडी जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को चेक करती है, कंट्रोल करती है. नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया है. लीनियंसी प्रोविजन जो है वो कंपनीज को हेल्प आउट करती है, उन्हें सपोर्ट करती है अगर वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस जो है वो रिपोर्ट करना चाहते हैं. एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में कार्टेल, प्राइस फिक्सिंग और बिड रिगिंग, ये हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट में आता है. जो भी अग्रीमेंट कॉम्पिटिटर में होते हैं, और खास तौर पे मैं एग्जांपल दिया है मैंने, कार्टेल, प्राइस फिक्सिंग और बिड रिगिंग, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी, थोड़ी देर पहले. ये हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट में आता है. यानी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में इसे हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट कहा जाता है. कार्टेल, प्राइस फिक्सिंग, बिड रिगिंग. हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट टू राइट. यानी कि अगर एक लाइन इस तरह गई हुई है तो ये हॉरिजॉन्टल है.
और एक लाइन इस तरह आई है, ये वर्टिकल है, खड़ी लाइन कहते हैं, खड़ा हुआ खड़ी लाइन, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ आ रही है तो वो वर्टिकल है, और लेफ्ट टू राइट जा रही है तो हॉरिजॉन्टल है। यानी नॉर्थ से साउथ वर्टिकल है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है तो वो हॉरिजॉन्टल है। तो इसे हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट कहते हैं, कार्टेल को, प्राइस फिक्सिंग को, बिड रिगिंग को, क्योंकि ये जो भी होता है एक लेवल पे होता है। एक लेवल पे होने का क्या मतलब है, वो सारे प्लेयर्स जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और अग्री करते हैं कि हमें एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस करनी है, वो सारे एक लेवल पे होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल, इसलिए हम उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। जैसे आप और आपका फ्रेंड, आपके जितने फ्रेंड है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, वो एक लेवल पे है। आप और आपके फ्रेंड और आपके फ्रेंड के फादर, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। आप आपका फ्रेंड हॉरिजॉन्टल है, लेकिन उसके फादर ऊपर, तो वो वर्टिकल है, मतलब वो उससे आपसे वर्टिकली कनेक्टेड, यानी आपसे ऊपर डेजिग्नेशन, आपके बराबर डेजिग्नेशन और आपसे लोअर डेजिग्नेशन। तो क्योंकि वो सारी कंपनीज एक लेवल पे अग्री कर रही हैं और सारे प्रोड्यूसर हैं, तो हमने उनको हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट कहा। तो कार्टेल, प्राइस फिक्सिंग और बिड रिगिंग हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट का एग्जांपल है। और वर्टिकल एग्रीमेंट क्या होता है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस जो मैंने बताया था, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट सप्लायर फ्रॉम डीलिंग विद अदर पार्टीज। भाई मैं तुम्हारा सारा सामान खरीदता हूँ 80%, अगर किसी और को बेचोगे तो तुम्हारा सामान अगले महीने से खरीदना बंद कर दूंगा। ये हुआ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, इसीलिए इसे वर्टिकल बोला, क्योंकि जो खरीदने वाला है उसका अपर हैंड है और इसका लोअर हैंड है। ये बायर है, मेजर स्टेक खरीदता है, वो उससे नीचे है डिजिग्नेशन में। अगर वो नहीं उसकी बात मानेगा तो नेक्स्ट मंथ से वो उससे प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल खरीदना बंद कर देगा। इसलिए वर्टिकल एग्रीमेंट। हो पाए हम क्लियर। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कंपनीज को कंपटीशन से रोकेगी, कंपटीशन नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिक्लाइन कर जाएगा, प्राइस हाइक हो सकता है। Characteristics of abuse of dominant position, this we shall address in the next session.